زارا زارا کہاں چلی گئی ہو؟ ارے کیا کر رہی ہو؟ ناشتہ لے بھی آؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میرے لیے ناشتہ بنا رہی ہو یا پھر پوری بارات کے لیے بنا رہی ہو؟ اب لے بھی آؤ۔ جی بس لا رہی ہوں۔ کیسی بیوی مل گئی ہے مجھے جسے کوئی کام نہیں آتا، سست کہیں کی۔ ہر انسان اپنی پسند سے شادی کرتا ہے، اور ایک میرے ماں باپ نے میرے سر پہ پتہ نہیں کون سی مصیبت ڈال دی ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ بس آ گیا ناشتہ۔ اتنے زور سے کیوں چلا رہے تھے آپ؟ تم کوئی کام ٹائم سے نہیں کرتی، پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا جب میری شادی تم سے ہو گئی۔ اللہ جانے کب پیچھا چھوٹے گا میرا تم سے۔ صبح صبح موڈ آف کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں میں ان کو اتنی ناپسند کیوں ہوں۔ آخر مجھ میں ایک کمی کیا ہے سوائے یہ کہ میں غریب ہوں؟ باقی تو مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پڑھی لکھی ہوں، خوبصورت ہوں، سلیقے دار ہوں، پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ کیا غریب ہونا کوئی جرم ہے؟ صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں انہیں میری کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن میں کیا کروں، میں جاؤں بھی کدھر؟ ان کے علاوہ تو میرا اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میرا کوئی بہن بھائی ہے جن سے میں اپنا دکھ بانٹ سکوں، جن کے پاس میں جا سکوں۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی اور رستہ بھی نہیں یہ سب کچھ سہنے کے علاوہ۔ ارے سالس، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ارے مایا، بس تھوڑا سا آفس کا کام رہ گیا تھا، وہی کر رہا تھا۔ ارے چھوڑو، کام تو ہوتے رہیں گے۔ آج باہر کہیں چلتے ہیں، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، اور تمہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ آج موسم کتنا اچھا ہے نا مایا؟ صحیح کہہ رہے ہو، آج بہت رومانٹک موسم ہے۔ سالس، میں کئی دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اتنا بیزی تھی آفس کے کاموں میں کہ موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ ارے مایا، آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ سارے آفس میں ہمارے پیار کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے، ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی؟ شادی؟ وہ مایا، شادی تو… ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے شادی کی؟ کر لیں گے نا بعد میں۔ کیا تمہیں شادی کی کوئی جلدی نہیں؟ تو پھر تم ایک کام کرو، تم بیٹھے رہو، میں کسی اور کو ڈھونڈ لیتی ہوں۔ ارے مایا، تم تو برا ہی مان گئی۔ چلے ٹھیک ہے، ہم جلدی شادی کر لیتے ہیں، لیکن تم مجھے تھوڑا سا تو ٹائم دو نا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو ہم جلدی ہی شادی کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ چلو اب آفس چلتے ہیں، وہاں پہ بھی کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ارے اب میں اپنی پہلی شادی کے بارے میں مایا کو کیسے بتاؤں؟ اور پھر میں زارا کو بھی کیسے بتاؤں مایا کے بارے میں؟ میں مایا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اتنی امیر ہے، اتنا بڑا گھر ہے اس کا، اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، اوپر سے اتنی خوبصورت ہے، اور میں تو اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ لیکن میں ان دونوں کو کیسے بتاؤں گا؟ اب تو زارا کو بھی بتانا پڑے گا اور مایا کو بھی بتانا پڑے گا، لیکن کیسے؟ ایسا کرتا ہوں، سب سے پہلے زارا کو بتاتا ہوں، اسے منا لیتا ہوں، وہ جلدی مان جائے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ زارا! زارا! ارے کہاں ہو تم؟ جی بولیے نا، کیا ہوا؟ وہ میں کچن میں تھی، کام کر رہی تھی۔ تم دن رات بس کچن میں ہی رہتی ہو، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں کیا؟ دیکھو، اب میری بات غور سے سنو، میں تم سے پیار نہیں کرتا، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اور میں تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے دوسری شادی کرنے دو۔ کیا دوسری شادی؟ ہاں، دوسری شادی، اور اگر تم مجھے دوسری شادی نہیں کرنے دو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نہیں نہیں، مجھے طلاق مت دیجیے گا، آپ کر لیں دوسری شادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنی باس سے شادی کر رہا ہوں، وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے، اور میں بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اپنے لیے ویسی ہی بیوی چاہیے تھی، ایک پرفیکٹ بیوی، جس کے پاس گاڑیاں ہو، بنگلہ ہو، اور وہ پڑھی لکھی بھی ہے، اچھی پوسٹ پر بھی ہے، آفس کی CEO ہے وہ۔ چلو، یہ تو آرام سے ہی مان گئی، زیادہ مسئلہ نہیں بنا، لیکن اب پریشانی ہے مایا کو بتانے کی۔ میں اسے کیسے بتاؤں گا؟ چلو کچھ سوچتا ہوں۔ مایا، میں تمہیں بہت دنوں سے ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ ہاں بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مایا،
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बात तुम्हें बताने का मौका ही नहीं कभी मिला कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी का नाम ज़ारा है और मैंने उससे शादी की बात कर ली है। उसे हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं एक शादीशुदा मर्द से शादी करूंगी? तुमने मुझे धोखा दिया है और सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे माया, मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत मजबूर था। क्या मजबूरी थी? ज़ारा से मैंने अपनी पसंद से शादी नहीं की। मेरे माँ बाप ने मेरी जबरदस्ती उससे शादी करवा दी। मैं तो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है माया। वो रिश्ता तो सिर्फ मैं अपने माँ बाप की वजह से निभा रहा हूँ, वरना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो। और मैं अपनी बीवी का मकाम भी सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं उसे सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से नहीं छोड़ रहा, और फिर उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता माया, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माया। वो एक कोने में पड़ी रहेगी, जैसे तुम चाहो वैसे मैं उसके साथ रहूंगा। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे देखूंगा भी नहीं, जैसे तुम कहोगी वैसे रहेंगे। प्लीज माया, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा माया। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें शादी के बाद मेरे घर में रहना होगा और तुम अपनी पहली बीवी से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। और मैं तुम्हारी बीवी के साथ चाहे जैसा भी सलूक करूं, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है माया, मुझे पता था तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। तो ठीक है, फिर हम इस जुम्मे को निकाह कर लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं कैसी बदकिस्मत बीवी हूँ जो अपने ही शोहर की दूसरी शादी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ। अब तो मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तैयारियां करनी ही होंगी। मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं जाऊंगी भी कहाँ? मैं तो एतराज भी नहीं कर सकती, वरना ये मुझे तलाक दे देंगे। मामा पापा, देखिए आपके फूल सी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। ज़ारा, तैयारी होगी सारी? जी, हो गई सारी तैयारी। ये रोनी शक्ल क्या बना रखी है? तुमसे पूछकर ही शादी कर रहा हूं मैं दूसरी। तुम ये जाहिर करना चाहती हो क्या मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया? हर इंसान शादी करता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया में कई ऐसी बीवियां हैं जो अपनी सौतनों को बर्दाश्त करती हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अपना ये रोना धोना बंद करो, मैं बारात के लिए लेट हो रहा हूँ। और तुमने अपना सामान भी पैक कर लिया है ना? तुम्हें तो पता है ना, अब से हम माया के साथ रहेंगे, उसके घर में। जी, मैंने अपने सामान के साथ आपका भी सामान पैक कर लिया है। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने। तुम भी आ जाना, तुम भी आ जाओ। तुम चलो, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद, मुझे कुछ काम है। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओके। देखो ज़ारा, मैंने सिर्फ तुम्हें सालिस की मोहब्बत में कबूल किया है, लेकिन एक बात याद रखना, सालिस सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहना। मुझे तुम सालिस के आसपास भी नजर मत आना। और हाँ, आज से किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वैसे भी घर में तुम सारा दिन फ्री ही तो होगी, एक घर संभाल लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अपने घर में भी तो तुम ये सब काम करती ही थी। और किचन के साथ जो स्टोर रूम है उसे साफ कर लेना, आज से तुम वहीं पर रहोगी। ठीक है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। हाँ माया, तुमने बुलाया मुझे? आधे घंटे से आवाजें लगा रही हूँ, किधर मर गई थी तुम? वो मैं नमाज पढ़ रही थी, इसीलिए नहीं सुन पाई। अच्छा बस बस, ज्यादा बहाने करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ये लो माया चाय। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सालिस के सामने मत आया करो, और तुम्हारी औकात ही क्या है? मैंने तुम्हें झोंपड़ी से लाकर इतने बड़े घर में बिठा दिया है, जबकि तुम इस काबिल नहीं थी। मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब जाओ यहाँ से। ये अपने आप को समझती क्या है? क्या मैं अपनी मर्जी से इसके घर में आई हूँ? ये सब मैं सिर्फ सालिस की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। जब इसका दिल करता है मुझे जलील कर देती है, और सालिस वो तो कुछ कहता ही नहीं इसे।
उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो मेरे साथ जैसा भी सलूक करे। मैं जब से यहाँ आई हूँ नौकरानियों की तरह रह रही हूँ। वो तो बस दिन रात माया के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और माया वो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। इतने सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, बस मैं काम ही करती रहूं यहाँ पर और मेरी कोई इज्जत ना करे। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मैं इतनी जरूरी मीटिंग कर रही थी, इसकी वजह से सारी मीटिंग डिस्टर्ब होकर रह गई है। इसे तो जाकर अभी बताती हूँ। सारा मूड ऑफ कर देती है, सारा काम डिस्टर्ब करके रख देती है। इसे खुद को तो कोई काम नहीं है और दूसरों के काम की कोई अहमियत ही नहीं है इसके नजदीक। ये दिन ब दिन बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ज़ारा, इतना शोर क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं ऑफिस का कितना जरूरी काम कर रही हूँ। सोनिया, मुझे पता नहीं था कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पता होता, तुम्हें सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे माँ बाप का नाम बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? वो बेकार ही थे और तुम जैसी बेकारन को हमारे सर पर डाल के चले गए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम मेरे घर में रहती हो। आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारा शौहर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ? आज तो इसने सारी बदतमीजी की हदें पार कर दी। इसे क्या लगता है मैं खामोश हूँ, कुछ कर नहीं सकती क्या? अब मैं सालिस को इसके चंगुल से निकाल कर ही रहूंगी। अब ये देखेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अरे एक आइडिया आया है, अब देखना माया मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चलो माया, आज कहीं डिनर पर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। मैं थोड़ा सा काम निपटाऊं, फिर चलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये डिनर पर जा रहे हैं। इनका प्लान तो मैं फेल करती हूँ। सुनिए। अरे ज़ारा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, सुबह से दर्द हो रहा है। मैंने मेडिसिन भी ली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे हॉस्पिटल ले जाइए। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। जी ठीक है, चलते हैं। मुझसे तो अपना सर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अरे सालिस किधर चला गया? मैं तैयार होकर आई हूँ और वो गायब हो गया। अरे कहाँ चला गया? ऐसे करती हूँ, फोन करके देखती हूँ। उठा लो फोन, उठा लो। अरे ये तो फोन भी नहीं उठा रहा, अब क्या करूँ? पता नहीं कहाँ चला गया है ये। अरे 11 बज गए हैं रात के, अभी तक आया ही नहीं है। सारे मेरे डिनर का प्लान का सत्यानाश कर दिया। आ लेने दो इसे, पूछती हूँ। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? तुम मुझसे डिनर का बहाना करके इस चुड़ैल के साथ घूम रहे हो और मैं कब से तैयार होकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? अरे नहीं माया, हम घूमने नहीं गए थे। वो तो ज़ारा की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। इसकी तबीयत खराब थी तो किसी नौकर के साथ भेज देते। अपने साथ ले जाना जरूरी था क्या? ज़ारा मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं जिसे मैं नौकर के साथ भेज देता। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। आज अगर मैं उसे बाहर ले गया, वो भी डॉक्टर के पास, तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो भी मेरी जिम्मेदारी है, जिस तरह तुम हो। अरे मैं अपने आप को क्या समझती? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है। तुम इस काबिल नहीं थे कि मैं तुमसे शादी करती, जबकि तुमने मुझे धोखा दिया था, फिर भी मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें अपने महल जैसे घर में लाई, इतनी आसाइशें दी, और आज तुम मुझे बातें सुना रहे हो। बस करो माया, अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। जाओ ज़ारा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी ठीक है। हाँ। अरे आज माया फिर से काम कर रही है। आज भी उस दिन की तरह इसे तंग करती हूँ। उस दिन तो चलो बाई चांस हो गया था, लेकिन आज इसे मैं मजा चखाऊंगी। आज ये फिर से मीटिंग कर रही है, क्यों ना आज मैं फिर से ऊंची आवाज में काम करूं, जोर जोर से बर्तन पटकती हूँ। अब तो सालिस भी घर पर है, वो माया की बदतमीजी अपनी आंखों से देखेंगे। अरे ये आज फिर से कैसी आवाजें आनी शुरू हो गई? लगता है आज फिर ज़ारा मैडम बर्तन धो रही है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ज़ारा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ तो अपना शोर कम किया करो, लेकिन मुझे नहीं पता था माया कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो। अरे मैं कोई शोर नहीं कर रही, मैं तो बस अपना
एक गवार लड़की बस यही सब कर सकती है। तुम्हें क्या पता मेरा स्टेटस, मेरा बिजनेस, मेरा काम। मैंने तुमसे पहले भी बोला है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सोनिया, ये तुम कैसे बात कर रही हो ज़ारा से? तुम ज़ारा से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? और ये क्या गवार गवार लगा रखा है? ज़ारा गवार नहीं है, बल्कि तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और इस गवार के लिए तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? मैं तुमसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे ऊपर चीख चिल्ला सकती हो। जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है ना, उस तरह से कभी ज़ारा ने मुझसे बात नहीं की। अच्छा, तो क्यों की मुझसे शादी? तुम इसी के साथ रहते और तुम हो भी इसी के लायक। मैंने तो तुमसे शादी करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं ज़ारा को समझ ही नहीं पाया। उसने हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी दूसरी शादी के लिए भी तैयार हो गई, और मैंने हमेशा ज़ारा का दिल दुखाया। अच्छा, तो अब तुम्हें हमदर्दी जाग रही है ज़ारा के लिए? मुझसे शादी करते वक्त ये हमदर्दी कहाँ थी तुम्हारी? तुम दोनों निकलो अभी के अभी मेरे घर से, दफा हो जाओ। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और सालिस, तुम्हें जल्द ही तलाक के कागज मिल जाएंगे, और कल से ऑफिस भी आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनिए, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों ज़ारा, क्या हुआ? मैं जिस दिन इस घर से आपकी बारात लेकर निकली थी, मैंने उसी दिन आपका घर और हमारा रिश्ता खत्म कर दिया था। आपने कभी हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किया और हमेशा मुझे ताने देते रहे। मुझे तो उसी दिन आपको और इस घर को छोड़ देना चाहिए था, जब आपने मुझसे दूसरी शादी की बात की थी। लेकिन मैं उस वक्त कमजोर थी और बुज़दिल थी, लेकिन आज मैं कमजोर नहीं हूँ। तब मैं समझती थी कि मैं अकेली हूँ और सिर्फ मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने माया को भी कबूल किया। लेकिन फिर मैं मजबूत हो गई हूँ। अब मैं चाहती तो फौरन वहाँ से निकल जाती, लेकिन मैं माया का असली चेहरा आपको दिखाना चाहती थी। ज़ारा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। चलो घर के अंदर। नहीं सालिस, आप मुझे बार बार घर के अंदर जाने को मत कहें। अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहती हूँ। मैंने आपके लिए और आपके घर के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अभी आपको माफ नहीं कर सकती। जब मुझे लगेगा कि मुझ में आपको माफ करने की हिम्मत हो गई है, तब मैं खुद ही आ जाऊंगी। अभी मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। और हाँ, अगर आप सोनिया के पास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा मत कहो ज़ारा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आई एम सॉरी, मैं अब आपको माफ नहीं कर सकती। ज़ारा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने ज़ारा के साथ बहुत बुरा किया। मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाया। मैं बस माया के पीछे और उसकी दौलत के पीछे भागता रहा। ऐसी दौलत का क्या फायदा जो सुकून ही छीन ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।